بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چپٹر 2 میں لیکچر نمبر 2 کریں گے۔ ٹاپک ہے بایولوجیکل میتھڈ، لیکن بایولوجیکل میتھڈ کا ایگزامپل۔ پریویس لیکچر میں ہم نے بایولوجیکل میتھڈ یا سائنٹیفک میتھڈ کو ڈیٹیل کے ساتھ کیا۔ ابھی اس کا جب ہم یہ ایگزامپل نمبر 1 اور پھر نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس ایگزامپل نمبر 1 سے بھی آپ کو آئیڈیا یعنی آپ لوگ کلیئر ہو جائیں گے۔ ایگزامپل نمبر 2 نیکسٹ لیکچر میں پھر ایگزامپل نمبر 2 کریں گے۔ یہاں پر ابھی ایگزامپل نمبر 1 میں تقریباً 2000 سال پہلے یا اس طرح کچھ یعنی اس وقت ایک بیماری آ گئی اور اس بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے۔ ایک وبائی مرض تھا، بہت زیادہ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی، اور اس بیماری کا نام اس وقت کے سائنٹسٹوں نے رکھا ملیریا۔ ملیریا نام کیوں دیا گیا یہ بھی میں ڈسکس کروں گا۔ ملیریا تو بہت زیادہ لوگ مر رہے تھے اس بیماری کی وجہ سے، تو سائنٹسٹ کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا، یعنی بایولوجسٹ کے لیے یہ ایک چیلنج بن گیا۔ تو اس وقت سائنٹسٹ نے اس سے ایک کویسچن بنایا اور پرابلم، یعنی یہ ایک سائنٹیفک میں پرابلم ہے، ابھی بایولوجیکل پرابلم، اس کو حل کرنے کے لیے بایولوجسٹ بایولوجیکل میتھڈ یا سائنٹیفک میتھڈز اس پہ وہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے، اور یہاں پر وہ 6 سٹیپس کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر پہلا سٹیپ میں نے پہلی بھی آپ سے کہا تھا کہ بایولوجیکل میتھڈ یا سائنٹیفک میتھڈ میں پہلا سٹیپ ہے ہمارے پاس آسکنگ کویسچن یا ریکگنیشن آف کویسچن۔ تو یہاں پر انہوں نے کویسچن ارائز کیا، سائنٹسٹ نے کویسچن ارائز کیا کہ پہلا سٹیپ ہے آسکنگ کویسچنز یا ریکگنیشن آف کویسچن یا آسکنگ آف اے کویسچن یا ریکگنیشن، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کویسچن ارائز کیا کہ وٹ از دا کاز آف ملیریا۔ سائنٹسٹ نے کویسچن اٹھا لیا اور کویسچن تھا وٹ از دا کاز آف ملیریا۔ وٹ از دا کاز آف ملیریا، یعنی اس مرض کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مر رہے تھے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ملیریا، یہ لوگوں کو جو بیماری لگتی ہیں یہ کس وجہ سے لگتی ہیں، اس کی کازز کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کویسچن ارائز کیا اور یہ سائنٹیفک میتھڈ کا پہلا سٹیپ۔ ابھی یہ سٹیپ نمبر 1 ہو گیا۔ پھر سٹیپ نمبر 2 میں میں نے پریویس لیکچر میں کہا تھا کہ اس میں ہمارے پاس آبزرویشن ہے۔ سٹیپ نمبر 2 میں ہم آبزرویشن کرتے ہیں اور آبزرویشن کے ساتھ ساتھ پریویس ریسرچ یعنی لٹریچر کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ابھی یہاں پر اس ملیریا کی بیماری میں آبزرویشن سائنٹسٹوں نے کیا کچھ آبزرو کیا۔ سائنٹسٹ کے کچھ آبزرویشن، پہلی آبزرویشن تو یہ کہ جن لوگوں کو ملیریا کی بیماری لگتی اس کو فیور ہوتا، یعنی بخار کے ساتھ ساتھ دوسرا آبزرویشن یہ تھا کہ یہ بیماری ان لوگوں میں کامن تھی جو مارشی پلیسز کے قریب رہتے تھے۔ مارشی پلیسز کا مطلب یعنی وہ جگہ جہاں جس کو مارشز کے لفظی معنی ہے دلدل، یعنی وہ جگہ جہاں پر دلدل ہوتے ہیں، دلدل کے قریب جو لوگ رہتے تھے اس کو اکثر یہ ملیریا کی بیماری لگتی تھی، اور جو لوگ دلدل سے دور رہتے تھے ان لوگوں کو یہ بیماری نہ لگتی۔ یہ دوسرا آبزرویشن۔ تیسرا آبزرویشن یہ تھا کہ ایک والنٹیئر آ گیا اور انہوں نے ایک آدمی ہے فار ایگزامپل، اور یہ مارشی واٹر، مارشز کے جو پانی ہوتے ہیں جہاں پر دلدل کے جو پانی ہے، انہوں نے رضاکارانہ طور پر وہ پانی پی لیے، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا، یعنی اس کو ملیریا نہیں لگی، اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی ایک تیسرا آبزرویشن۔ تو یہاں پر میں لکھوں گا کہ سم والنٹیئر یا a volunteer drank the water of marshes، drank the water یا the marshy water یا the water of marshes، the water of marshes but he lives، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا، وہ زندہ رہ گئے۔ اس وقت جس کو بھی یہ بیماری لگتی، یہ ایک وبائی مرض تھا، تو اس کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی۔ لیکن یہاں پر آبزرویشن
जब साइंटिस्ट ने क्वेश्चन एराइज किया पहले स्टेप में कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, फिर दूसरे स्टेप में वो ऑब्जर्वेशन करते हैं और यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन ये कि वो यानी जिनको मलेरिया की बीमारी लगती उनको बुखार होता, ये उन लोगों में ये बीमारी उन लोगों में कॉमन थी, आम थी, जो दलदल के साथ रहते थे, दलदल के करीब रहते थे। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये कि एक वॉलंटियर आ गया, एक बंदा रज़ाकाराना तौर पर, और इस मार्शी प्लेसेस से उन्होंने पानी पिए लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, यानी वो ज़िंदा रहे। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन। इसके साथ मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जर्वेशन के साथ हम लिटरेचर की भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर फिर बाद में साइंटिस्ट ने स्टडी शुरू की, और साइंटिस्ट ने जब स्टडी शुरू की तो एक साइंटिस्ट और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। लेक्चर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में हम कर चुके हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ काज करते हैं हमारी बॉडी में। तो इन ही ऑब्जर्वेशन और इसी लिटरेचर को मद्देनज़र रखकर यहाँ पर ये 3 स्टेप 1 2 3 ये ऑब्जर्वेशन और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्टेटमेंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ काज होते हैं, तो ये लिटरेचर था। अभी ये स्टेप नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अभी स्टेप नंबर 3 है, और स्टेप नंबर 3 में मैंने आपसे कहा था, इस स्टेप नंबर 3 है हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस में साइंटिस्ट जनरल गेस देते हैं, और वो गेस ठीक भी हो सकता है, वो गेस गलत भी हो सकता है। जब यहाँ पर लिटरेचर में यानी ऑब्जर्वेशन में उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की, तो यहाँ पर साइंटिस्ट को आइडिया आ गया और उन्होंने सोचा कि ये मलेरिया की बीमारी जो है ये प्लाज्मोडियम की वजह से लगती है। तो उन्होंने हाइपोथेसिस पेश किया कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मलेरिया की बीमारी ये प्लाज्मोडियम की वजह से लगती है, और ये प्लाज्मोडियम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मॉस्कीटो के अंदर पाया जाता है। मॉस्कीटो इसको ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इनटू अदर। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस मैंने आपसे कहा था कि जनरल गेस होता है। साइंटिस्ट ने ये जनरल गेस पेश किया कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अभी ये ठीक भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। हम देखेंगे कि क्या ये ठीक है या गलत है, और इसको देखने के लिए फर्दर स्टेप्स साइंटिस्ट ने किए। अभी तीसरा स्टेप तो ये था। चौथे स्टेप का नाम है डिडक्शन। अभी साइंटिस्ट डिडक्शन पेश करेंगे। डिडक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि लॉजिकल गेस होता है। अपना आंसर फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट डिडक्शन पेश करते हैं। यहाँ पर हाइपोथेसिस उन्होंने पेश किया कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ये बीमारी प्लाज्मोडियम की वजह से लगती है। तो अभी वो डिडक्शन पेश करते हैं इस हाइपोथेसिस को मद्देनज़र रखकर, और वो डिडक्शन पेश करते हैं। वो कहते हैं कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, इफ़ Plasmodium is the cause of malaria, then every malarial patient should have plasmodium in their blood. Every malarial patient should have plasmodium in their blood. उन्होंने ये डिडक्शन पेश किया। अभी डिडक्शन में वो क्या कहते हैं कि अगर प्लाज्मोडियम की वजह से ये बीमारी लगती है तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी मलेरिया की बीमार है सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा। और बिल्कुल ये ठीक जिस तरह उन्होंने हाइपोथेसिस पेश किया कि प्लाज्मोडियम की वजह से ये बीमारी लगती है, तो ये ज़ाहिरी बात है इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर ये बीमारी प्लाज्मोडियम की वजह से लगती हैं तो जितनी भी मलेरिया के पेशेंट हैं सब के ब्लड में ज़रूर प्लाज्मोडियम होगा, सब के ब्लड में ज़रूर प्लाज्मोडियम होगा। ये उन्होंने डिडक्शन पेश किया, और यही डिडक्शन
यानी अपने आंसर नैरो बनाने के लिए उन्होंने यही डिडक्शन पेश किया, और यही डिडक्शन के ऊपर अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी स्टेप नंबर 5 अप्लाई करेंगे। अभी उस डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट इस तरह करते हैं कि एक साइड पर साइंटिस्ट 100 मलेरियल पेशेंट लेते हैं। 100 मलेरियल पेशेंट है, 100 मलेरियल पेशेंट। दूसरी साइड पर साइंटिस्ट 100 हेल्थी पर्सन्स लेते हैं, हेल्थी पर्सन्स। एक साइड पर 100 मलेरियल पेशेंट और दूसरी साइड पर 100 हेल्थी पर्सन्स। यहाँ ये 100 जो मलेरियल पेशेंट है, इससे साइंटिस्ट ब्लड लेते हैं। यहाँ पर जो हेल्थी पर्सन है, NBCB साइंटिस्ट ब्लड लेते हैं। इनके ब्लड ये साइंटिस्ट टेस्ट कर लेते हैं, इनके ब्लड भी साइंटिस्ट टेस्ट कर लेते हैं। तो जब उन्होंने टेस्ट किया तो जितनी भी मलेरियल पेशेंट थे उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया, यानी हैव प्लाज्मोडियम, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। जबकि दूसरी तरफ जितनी भी हेल्थी पर्सन्स थे उससे साइंटिस्ट ने ब्लड लिया, उसको उन्होंने टेस्ट किया और इसमें कोई प्लाज्मोडियम नहीं था, यानी नो प्लाज्मोडियम फाउंड, इसमें कोई प्लाज्मोडियम उन्होंने नहीं पाया, नहीं देखा। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि इधर हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल है, और यहाँ पर जो हेल्थी पर्सन्स है यहाँ ये हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है। तो इधर एक्सपेरिमेंट इसको ज़रा दोबारा देख लें, यानी 100 मलेरियल पेशेंट उसने लिए, उन्होंने साइंटिस्ट ने उनसे ब्लड लिया, उसको टेस्ट किया। जब उसको टेस्ट किया तो सब में प्लाज्मोडियम मौजूद था। दूसरी तरफ उन्होंने 100 हेल्थी पर्सन्स लिए, सेहतमंद लोग, उनसे भी उन्होंने ब्लड लिया, उसका भी उन्होंने टेस्ट किया। जब टेस्ट किया तो उसमें कोई प्लाज्मोडियम नहीं था। तो इसमें जो मलेरियल पेशेंट थे सब में प्लाज्मोडियम था, और जो हेल्थी पर्सन्स थे किसी में भी प्लाज्मोडियम नहीं था। तो उन्होंने जो यानी हाइपोथेसिस पेश किया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, इस एक्सपेरिमेंट में उनका ये हाइपोथेसिस ट्रू साबित हुआ, सही साबित हुआ। और फिर उन्होंने यानी स्टेप नंबर 6 में उन्होंने रिज़ल्ट पेश किया या उन्होंने कंक्लूजन पेश किया, और रिज़ल्ट में वो कहते हैं कि एक साइड पर हमने 100 पेशेंट का ब्लड लिया, 100 पेशेंट का ब्लड लिया, दूसरी साइड पर हमने 100 हेल्थी पर्सन्स का ब्लड लिया, हेल्थी पर्सन्स। तो जितनी भी पेशेंट थे सब में प्लाज्मोडियम मौजूद था, जबकि जो हेल्थी पर्सन्स थे किसी के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम नहीं था। तो इसलिए ये हाइपोथेसिस वो ट्रू साबित करते हैं कि यस, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो क्वेश्चन किया गया था कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने, हाइपोथेसिस पेश किया प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, फिर उस पर उन्होंने डिडक्शन दी कि इफ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन एवरी मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन दियर ब्लड। उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक साइड पर 100 हेल्थी पर्सन्स तो दूसरी साइड पर 100 मलेरियल पेशेंट। जितनी भी मलेरियल पेशेंट थे सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, जबकि हेल्थी पर्सन्स के ब्लड में कोई प्लाज्मोडियम नहीं था। तो ये एक्सपेरिमेंट उसका सही साबित हुआ, और उन्होंने कंक्लूजन दिया, रिज़ल्ट दिया कि मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम की वजह से ये फैलती है, इसकी मेन काज है। तो ये पहला एग्जाम्पल और ये इसका मुकम्मल सलूशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दूसरा एग्जाम्पल हम करेंगे, तो यही टॉपिक आपको और भी क्लियर हो जाएगा।